بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام چلے گئے تو ایک رات خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، کیا بے وفائی ہیں؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اٹھنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کے نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلف سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مجارے پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ موجن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہدو انا محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذن کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال، ہم آج آپ سے وہی اذن سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اسی مکان پر کھڑے ہو کر اذان دیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیات کا حال تو کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گج میں مسجد اضافہ ہو گیا۔ جب اشہدو انا محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کی پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رکتول گریا جاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مردوں جن نہیں دیکھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کی ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان کی اخلاقی بستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق تو ملنا بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہیرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارگار سیدنا حضرت ابو بکر صدیقی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیب دانے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کے ذات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔
फिर आका ए कोनैन का दिलकश अंदाज ए गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दिन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल वापस लौट गए, मगर उनका दिल वही हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को वही लेकर पहुंचे। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज्यादा बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदियत कर दी थी, वो दीने इस्लाम की सूरत में सामने आ गई, और आपने इस्लाम की पुकार पर लबैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा, हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई। आप मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुशनसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलिन दौर था। हुजूर पाक अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रग ज्यादा अरसे तक कुफ्फारे मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके बाज़ साथियों, खास तौर पर गुलाम और ख्वातीन में तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खल्फ को जल्दी ये खबर मिल गई थी कि उसका गुलाम बिलाल नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है, और उसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुर्म की बादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबसी पर जुल्म वो सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। हालांकि ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लेटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखकर आपको दहकते हुए अंगारों पर लेटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बूझा दिया करती थीं, मगर आपके जुबाने मुबारक से आहत आहत के सिवा कुछ ना निकलता था। उमैया आपको कहता, अभी भी तुम मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा। लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क़-ए रसूल की हकीकी समा रोशन थी। आप आशिक ए हबीब ए खुदा थे। दुनिया की उन मारों से कहा दयार को छोड़ते हजरत उम्र बिन आज फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई जमीन पर लेटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वो भी जल जाता। लेकिन इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। लेकिन आशिक ए रसूल ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा नहीं किया। आप पर से इंतहा जुल्मो सितम का ये सिलसिला काफी अरसे जारी रहा। यार ए गार ए रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर उस आशिक ए शादीक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम इसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा, मैं तुम्हारे ख्याली यौमे आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसको फिर तहमूल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, उस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायाने शान नहीं। तुम अरबों की कौमे रिवायत को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम की अगर इतने ही हमदर्द हो तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर राजी हो गए और आपको आज़ाद करा दिया। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत बिलाल के आज़ाद होने की जब खबर मिली तो आप बेहद खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यार ए गार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आज़ाद कर चुका हूँ। सैयदना हजरत बिलाल हबसी अब आज़ाद थे।
और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह ए अक़दस में गुजारते थे, उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत तानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्के से मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार का मवाखात कराया तो सैयदना हजरत बिलाल हबसी को हजरत अब्बू रोहिया का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बेहद मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दागबेल डाली गई तो 1 साल के बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए। कुछ ने कहा नाकुज बजाया जाए। कुछ लोगों की तजवीज़ थी कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए, जिसे लोग देखकर नमाज की तरफ आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करें, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब तरीकों को नापसंद फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अजान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वो कलिमात दोहराए। हुजूर पाक ने वही इलाही के ज़रिए इन कलिमात को पसंद फरमाया। सैयदना फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी ख्वाब बयान कर दिया। सरकार कोनैन ने सैयदना हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि अजान दो। फिर आपने उनको अजान के कलिमात सिखाएं और उनको हिदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगली देकर अजान दो ताकि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो और दूर तक पहुँचे। चुनाचे मदीने की फिजाओं में नगम तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबसी रजी शून्य अल्लाहु अन्हु को दुनिया इस्लाम के पहले मुअज्जिन रसूल होने का अजीम एजाज मिला। जब मस्जिद नबी की तामीर हुई तो एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर उस पर छत डाल दी गई। उस जगह रसूल पुरनूर के अलावा वो सहाबी रहने लगे जो हम वक्त हुजूर पाक की खिदमत अक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते। उन मुक़द्दस असहाब को अशहाब शफ़ा कहा जाता है। अरबी में शफ़ा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हज़रत बिलाल हबसी भी असहाब शफ़ा में से थे। सरकार दो आलम के विसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हज़रत उमर शाम गए तो हज़रत बिलाल ने जाबिया में उनका इस्तेकबाल किया। किबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहां अजान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए तो लोगों के इसरार पर शहजाद गाने रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में अजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आईं। हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विशाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपकी विशाल की खबर फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक ज़रा हम सबको भी अता फरमाए और सैयदना हज़रत बिलाल हबसी रजी शून्य अल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबी रसूल के सदके उम्मते मुस्लिमा की बख्शीश फरमाए।